السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ سے امید رکھ، اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر، جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائش ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ پاک سے جڑے رہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ یقین رکھو اللہ پاک پر اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ پھر فکر کیسی؟ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ آسمان پر اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب اس نے وہ چیز تمہیں دینی ہو۔ گرتے ہوئے سنبھال لیتا ہے وہ تمہیں، تو کیا دکھ میں اکیلا چھوڑے گا؟ وہی ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تم تب بھی دعا کرتے رہنا، جب تمہارے پاس کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہی، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ پاک نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو راستہ اللہ پاک تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ پاک تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ پاک تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ پاک سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ پاک پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ پاک کی اطاعت، اور جب طول کرو تو مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ پاک سے ہر بات منوا لیتی ہیں۔ پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پاک پر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ پاک بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعا قبول ہو جائیں
तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की हर बात किया करो। उस वक्त अल्लाह पाक तुम्हारे बहुत करीब होता है। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तवक्क और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नुज़ूल मोजज़ों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। सूरह यूसुफ की मिसाल है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें पसंदीदा चीजों से आजमाता है ताकि उसको पाने की तड़प में हम अल्लाह पाक के और करीब हो जाएं। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब अल्लाह पाक चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करें तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगी तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं उसे यह खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन कुन की मंजिल तक लेकर जाता है। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजज़े होते हैं। मुतमईन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फयाकुन के मोजज़े उतरने वाले हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम यकीन के बाद कहानी मोजज़ों की लिखी जाए। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। मुझसे होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। बात तो सिर्फ ईमान, तवक्कुल, सब्र की होती है। अगर कभी तुम थक जाओ तो तुम कभी मायूस न होना। रब से गुफ्तगू करना, सफर की जुस्तजू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो। यकीन तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। यकीन तो सुलगती ही आग को भी ठंडा कर देता है। तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मोजज़ों का बहुत खास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे थाम लेगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सब्र कर लो, यह सोच कर कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह पाक की मर्जी से होता है। बेखौफ हो जाओ, तुम्हारे सारे मामलात अल्लाह पाक के हाथ में और उससे बेहतर और बड़ी कुदरतों वाला कोई भी नहीं, तुम्हारा नसीब भी नहीं। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफर बेहतरीन। मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। ना कर नसीब से इतने गिले, इंसान जब अल्लाह पाक राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। वक्त को पैदा करने वालों को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। 3 लोगों को कभी न भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। कमजर्फ इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर
वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागर, दूसरा मुनाफिक। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। किसी को आंसू देने से पहले यह सोच लेना, क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह अर्श तक जाती है। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह पाक मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते हैं। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक कम से कम रखो और ऊपर जो जात है उस पर तवक रखें। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रही है, चीख बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटे। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जत देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। गम और परेशानी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने परेशानी पर कदम रख लिया वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोशिश करें जहाँ रहें वहाँ अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसाइश पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी खूबसूरती, यादें बाकी रह जाएंगी। कोई कितना बुरा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई औहदा, ताकत या दौलत मिलती है। सिखाने के लिए किताब है और जिंदगी है, बस तुम्हें सीखने का शौक हो। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से
उनकी तरबियत पर उंगली न उठाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी ये 3 चीजें न सीख सका वो जाहिल है। और वो 3 चीजें यह हैं ईमान, अखलाक और एक दूसरे का साथ, हमदर्दी। जितना नेकी की राह पर चलोगे उतनी अल्लाह पाक की मदद आएगी। जितनी अल्लाह पाक की मदद आएगी उतना कामयाब हो जाओगे। चंद दिन रब के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की खैर से बेहतर है। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो। गुनाहों से बचने में आसानी होगी। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। कुछ लोग इंसानों के जाने से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की बेआवाज लाठी खाने से ही समझते हैं। दिलों पर राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहां भी रहें मुखलिस रहें। मुझे लगता है कि कामयाबी की एक सूरत यह भी है कि हम किसी की दुआओं में रह जाएं, और सबसे बेहतरीन खसारा यह है कि हम अपने रवैया और आदतों की वजह से किसी की दुआओं से निकल जाएं, मुनफी हो जाएं। कोशिश करें कि अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि आप बिना किसी वजह के भी दुआओं में याद रह जाएं। अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदों की जरूरत पूरा करने के लिए खास तौर पर नेमतों से नवाज देता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि यह इंसान का जहनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को चंद मिनटों में हड़प कर जाती है। जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश इसलिए करता है ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो सकें। क्या कर लेंगे इंसान ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त जाया करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जो शख्स बिना किसी वजह से आप से उकता जाए और नजरअंदाज करे तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अल्लाह पाक ने आपके सामने उन कमजोर लोगों को जाहिर किया है जिन पर आम मोहब्बतें लुटा रही हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उन्हें जिंदगी में कभी बेलौज मोहब्बतें नसीब हों। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद बना देता है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहत नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहत इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बंदगी साफ नजर आती है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदों के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। हर इंसान को यह फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। अगर आंख की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं।
ایک بہت مختصر اور گہری بات، دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کسی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ سچائی کی سب سے بڑی، سب سے سچی نشانی سادگی اور وجاہت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے خاص فیصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر۔ ہاں، جب وہ اللہ پاک چاہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ پاک ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے تمام کام کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ پاک سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم اور حوصلوں اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو کیا جواب آیا؟ جب تم آسمان جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ، اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی ہوگی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے واقف ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔
इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह पाक दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान न करना, खुदा जो चाहे वो कर सकता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयाजगार छोड़ सकती है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। रिश्ता कोई भी हो खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो। नफरतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। इज्जत उतनी ही दो जितने की कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे ही होते हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। हर शख्स को आप राजी नहीं कर सकते। यह काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बजमीर सच्चे और उसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा। मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख। मुझे कमजोर न कर, मुझे बख्श दे। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं। महफिलें अपनी सजाते हैं, तस्करा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है। मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना नामुमकिन लगे और तवक्कुल रखो अल्लाह पाक पर। फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा हर्ष हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं और आपके हाथ गिरने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। लोगों को दूसरों के बदलते हुए रवैये नजर आते हैं और अपनी हरकतों पर का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कुछ लोग बेवकूफ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला जर्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिक जानते हैं, आपके झूठों से वाकिफ होते हैं, वो आपके जालों से वाकिफ होते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नजरअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेगा और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको और सब्र उतना ही समेटो जितना रब का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह पाक का मामला बच जाता है। चुप से बड़ी कोई बदबाप और बेशक उसका इंतजाम बहुत बुरा होता है। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है वो कभी न कभी खुद उससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है।
جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اوم نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب دل میں میل آ جائے، ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔